Subscribe the our SMS Education Jhanjharpur channel and press the bell icon. Students of class 8, today we study again the Indian Constitution and the key feature of the Indian Constitution. Yesterday we studied about the same subject, civics, the chapter, the Indian Constitution, the topic, the key feature of the Indian Constitution. We studied near about 2 points. The third point today we study the separation of power. The separation of power. In this topic we study the separation of power. In this chapter we study the government. According to the Indian Constitution, the government has 3 organs. सरकार के 3 अंग होते हैं. They are legislature, executive and judiciary. Legislature refers to the elected representatives. In democracy, those elected representatives make the major decisions for the country. Those elected representatives make laws for the country on behalf of the people. कहने का तात्पर्य ये जो विधायिका के अंग हैं, विधायिका सरकार के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. विधायिका जनताओं के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं जो जनताओं के बदले में, जनताओं के लिए, संपूर्ण देश के लिए कानून बनाते हैं. Those elected representatives are responsible for implementing the laws and running the government. Next, we study the second organ of the government, executive. The executive body. The executive body is a smaller group of people. In executive, you study there are 2 parts or type of executive. The permanent executive and the temporary executive. Now you can ask, who are the permanent executive and who are the temporary executive? So permanent executives are those who are the government's employees, particularly the IS and IPS on the country level and the province level. Those persons who competes for PSC, Public Service Commissions, they are the permanent executives. केंद्रीय स्तर पर जो ये कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, स्थायी कार्यपालक पदाधिकारी, ये संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगिता की परीक्षा उत्तीर्ण करके उससे चुन करके आते हैं, जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाते हैं. और यूपीएससी के ही ब्रांच हैं सेकंड, IPS
Indian Police Services. So they are the permanent executive at the country level. और PSC जो होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो प्रत्येक प्रोविंस में प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करके आते हैं वो प्रदेश स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर। दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नमेंट के चेंज हो जाने पर भी, सरकार बदलने पर भी उनका वे नहीं बदलते हैं, वे अपने कार्य पर एट द एज ऑफ 60 जो उनका उम्र सीमा है उस समय तक वो काम करते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव। तो ये टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होते हैं जो इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जनताओं के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वे टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होते हैं। हु टेक्स द मेजर डिसीजन फॉर द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जनताओं के बदले में यही अस्थायी कार्यपालक पदाधिकारी या जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो देश के लिए अहम फैसला, नियम और कानून बनाते हैं। देश की जनताओं के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इत्यादि देश के लिए खोलते हैं, जनताओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। थर्ड आता है द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द जुडिशियरी। जुडिशियरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स इन आवर कंट्री। जुडिशियरी हमारे देश में जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, वह न्यायपालिका आप जिसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स इन द डिफरेंट स्टेट्स एंड द लोअर कोर्ट्स एट द district or sub-division levels. So these are the judiciary refers to the system of the courts. So the constitution says that each of these organs, and executive, legislature and judiciary, exercise their different powers. Through this, each organs act as a check on the other organs of the government. This ensures, अर्थात यह सुनिश्चितता प्रदान करता है different organs of the government. This ensures the balance of power between the three. इन तीनों के बीच में अर्थात लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कार्यों का संतुलन बना रहे, इसके लिए जो ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं वह अपने अपने कार्यों का संपादन करते हैं। नेक्स्ट इन द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ पॉइंट आता है फंडामेंटल राइट्स का। इन द की फीचर में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चौथा पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकार का। इट्स सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज ऑफन बीन रेफर्ड एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान का या जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतीय संविधान का एक प्रकार से आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। यह हमारे संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। The nationalists wanted to ensure that all the citizens should have given fundamental rights so that
they would develop their personality according to their capacity, according to their working ability. भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने देश के लिए संघर्ष स्ट्रगल किया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए, आज़ादी के बाद देश जब इंडिपेंडेंट हुआ तो देश का संविधान कैसा होना चाहिए, जनताओं को किस प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए, उसी विचारों से प्रेरित होकर के इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ने हमारे देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स जनताओं के लिए बनाए थे, जिससे कि देश की जनता अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार अपने अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स के बाद एक आता है हमारे इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसे हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एक ऑर्गन्स है, पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे कार्य के लिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेज मिलना चाहिए। ये हमारे संविधान में देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, द फिफ्थ पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का अर्थ होता है, हिंदी होता है धर्मनिरपेक्षवाद। तो आवर इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निरपेक्ष, निरपेक्ष मीन्स कि आवर कंट्री इंडिया हैज, our country India is one in which the state India doesn't have any particular religion officially। अर्थात हमारे भारत देश को कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यानी कि देश का कोई पार्टिकुलर रिलीजियन नहीं है, जैसे कि अदर वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में है। विश्व के अन्य देशों में उस देश का, राज्यों का राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन हमारे भारत देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई राजधर्म नहीं है। एज ए सेकुलर कंट्री इंडिया इन व्हिच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजियन ऑफिशियली, यानी सरकारी तौर पर हमारे देश का राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इट मीन्स कि आवर कंट्री एनकरेज all the religions equally. It depends upon the citizens of the country that he or she believes in the religion. यह देश की जनताओं पर निर्भर करता है कि वह किस धर्म में विश्वास करता है। जिन व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जिस धर्म में का प्रैक्टिस करना है, पूजा अर्चना करना है, वह विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ हैं, विभिन्न धर्मावलंबी हैं, और अपने अपने धर्मानुसार वे अपने अपने धर्म में विश्वास करते हैं। और राज्य सरकार को, देश को, राष्ट्र को इस धर्म के मामले में वह तटस्थ है। वह सभी धर्मों के लिए बराबर ही सहानुभूति रखता है। वह किसी धर्म के लिए कोई ज़्यादा और कोई कम की बात, सहानुभूति रखने की कोई बात ऐसी नहीं है। सो देयरफॉर इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, और इंडिया, भारत देश किसी भी धर्म के लिए कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। और यही कारण है कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग बहुत ही आपस में प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सो दीज आर द 5
points you study in the key feature of Indian Constitution. Now there is a question. You will remember. You will write the question of the answer. You will answer the question like this. ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि what would you happen if there were no restriction on the power of the elected representatives. इस चैप्टर से क्वेश्चन है कि what would happen if there were no restriction on the elected representatives. You, the students of class 8, prepare the answer. Next question, what would happen? What would happen if there were no restriction on the power of the elected representatives? Next question, why does a democratic country need a constitution? भारत एक प्रजातांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? So these are the questions, 2 questions. You will answer this question. Today we complete this chapter, the Indian Constitution and its key feature. Okay, thank you.